Yes, Aditi ma'am, now you are the host of the meeting. ठीक है जी? Yes, very good morning all the students. So first of all, I welcome you all in this new class. And those who are appearing for compartment papers, I wish for them that they should also pass with all those papers with good marks, and they should also join us in this new session. So before coming to the topic, let me tell you a few important things. Just like last year, we were having two parts of economics subject. One was stats and one was related to microeconomics, right? In the same manner, here in 12th class also, our economics subject is divided into two parts. One part is introductory macroeconomics. Okay, जैसे microeconomics था, तो in the same way, now we have introductory macroeconomics. This is one part, and second part is Indian economic development. Right? There is no statistics, no numericals like that. Only theory part is there, Indian economic development and introductory macroeconomics. So you need to buy two books, two separate books will be there, and you can note down the name of the author. That is, name of the author is Sandeep Garg. Okay, I can show you the book. Like I am right now, I am having this Indian economic development book. So writer of the book is Sandeep Garg. Dhanpat Rai publication. Sandeep Garg is the author. Okay? So you are requested to buy these two books, and preferably this Indian economic development book. It should be preferred. This should be the latest edition book, because lot of data is there, facts and figures are there. So better hoga if you buy the latest edition. But in case of macroeconomics, you can buy a second-hand book also. There is no change in that you can use. You can buy from other students also. Second-hand book will also be fine, no problem. If you want to buy a new one, that's your wish. That is up to you. I don't have any problem in any case. But for Indian economic development, it would be suggested that you buy the latest edition. Okay. Otherwise, you have to make the changes in the data, or you have to get the pages photo-stated, or you have to collect it by hand. That will be your headache in one way. Okay, so let us come to the point. So as I said, two parts are there and both are having equal weightage. Total 80 marks paper is there, board paper. 40 marks are for this Indian economic development and 40 marks are there for macroeconomics. Okay. Next is that this is my suggestion, come advice to all of you. Now be serious. In 11th class, lot of syllabus was deleted. There was a lot of relaxation from the board side. Less work was to be done, and you enjoyed a lot. Many of you never attended the classes even, and you also did not bother to see the videos also. But now in 12th class, that type of lethargic attitude is not required. You all need to be very serious and honest and sincere towards your own efforts. Okay? No one can judge us better than our own selves. तो आपको अपना ज़्यादा पता है बजाय टीचर के या आपके पेरेंट्स के. So you need to be very sincere. And if any point is not clear in the lecture, video links will be sent in the class group as usual, as we were doing last year. Links will be shared. So you can watch the videos again. And in case still problem is not clear, any word or line is not clear, you can send me a text message. And next day's lecture me, I will firstly handle to that topic, that problem. Then we will go ahead. Okay, so let us start. As you can see on the board, I am going to start with the easiest chapter, that is Indian economic development. Those who, because I did not tell the names of the books, so many of you may not be having, no problem, not a big issue. Today you can buy. So I am going to start with the easiest chapter, first chapter of Indian economic development. That is, name of the chapter is Indian economy on the eve of independence. Okay. Now in this chapter, very simple and easy chapter, I hope it is taken for granted that up to 10th class you have read about the historical background of our country. So many facts and figures are related to that also. Means it is assumed that you know about the history of our country, at least basic historical facts. So they will come again and again. So I hope there will not be any problem in the understanding of this chapter. Okay. So I am going to start with this. Indian economy on the eve of independence. So first of all, we should know the meaning of the term eve. Otherwise, eve word matlab
इवनिंग, शाम को बोलते हैं ना इवनिंग। तो यहाँ ईव वर्ड का मतलब ये नहीं है कि 15th अगस्त इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस, तो जो 14th अगस्त की इवनिंग थी तो उसकी बात हो रही है। डोंट गो टू द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म। हियर ईव वर्ड का मीनिंग है कि बिफोर इंडिपेंडेंस, फ्यू ईयर्स बैक, इंडिपेंडेंस के पहले 47 के पहले के 8 to 10 ईयर्स ऑन एन एवरेज हम ले लें, उसके पहले का टाइम, वट एवर टाइम वाज देयर, इंडिपेंडेंस के पहले का, तो उस समय व्हाट वर द कंडीशंस ऑफ आवर इकोनॉमी, व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ आवर इकोनॉमी, व्हाट वर द स्टेटस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स ऑफ आवर इकोनॉमी, ऑल दोस आर टू बी स्टडीड। उस समय क्या सिचुएशन थी, किस तरह की सिचुएशन थी, दैट इज टू बी अंडरस्टूड। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, I hope you know our country was under the control of which empire? Harshita, who I can see on my screen. Harshita, we were under the control of which empire? India was a colony of which country? भाई आपने 10th क्लास पास की है, वेरी सरप्राइजिंग है। हिमांशु, unmute yourself and tell. British Empire. Yes bete, please repeat. British Empire. Yes, British Empire. That's so simple. Our country was under the control of British Empire. So I hope you remember in 8th class you have read about this coming and expansion of British Empire. First lesson was related to trade and territory. तो उसमें आपने पढ़ा था there was one battle of Plassey. Present day जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे Plassey is the name of a place. तो वहाँ पे first battle was fought between the Indian side and the British side, and it was won by the Britishers. तो that time period was 1757. तो 1757 ऑनवर्ड्स लेके आप देखो 1947 में भी गॉट फ्रीडम, तो तकरीबन 200 साल, 200 इयर्स, 10 ईयर कम है, ऑलमोस्ट राउंड फिगर में कहें तो 200 इयर्स पास्ट वी स्पेंट अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। ठीक है। तो इन 200 इयर्स में द ब्रिटिशर्स दे एक्सप्लॉइटेड अवर कंट्री ए लॉट, not only politically but economically also. In the beginning they came here for trade only, but after controlling the trading part, then they started interfering in the administration, in the political scenario of our country, and with this winning of victory of this battle of Plassey, they just took control of the political arena of the country. ठीक है, तो यहाँ से उनका political control start हो गया, and once the political power is in the hands of any entity, any power, so then what happens, total we can say exploitation starts, and that too by the exploiting power. और हमारे लिए exploiting power कौन सी थी? That was the Britishers. ठीक है। अब उसका बेसिक पर्पस क्या था ब्रिटिशर्स का यहाँ आने का, क्या मकसद था, क्यों आ गए वो, उनको क्या मिलना था यहाँ से? तो इनिशियली तो दे केम हियर फॉर द ट्रेड पर्पस ओनली, बट आफ्टर सेटलिंग, एज आई सेड, आफ्टर गेटिंग प्रॉफिट्स इन द ट्रेड, देन दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट द पॉलिटिकल कंट्रोल। तो पहला उनका पर्पस था ट्रेड, सेकंड उनका पर्पस था पॉलिटिकल गेन या पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर दिस पार्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट। ठीक है। उसके बाद है कि उनके आने से पहले व्हाट वाज द स्टेटस ऑफ आवर इकोनॉमी। बाद की तो हम बहुत बात कर लेते हैं कि ये हो गया वो हो गया, तो उनके आने से पहले व्हाट वाज द सिचुएशन। तो एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड, इट इज देयर इन द बुक आल्सो, व्हाट वाज द स्टेटस, आवर इकोनॉमी वाज ए प्रॉस्परस इकोनॉमी, इट वाज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, and it was an economy which was well known for the handicrafts industry. Now one by one I am going to tell the meaning of these, although you know, but still briefly I am going to tell. Prosperous term, that means, what is the meaning? Prosperous means rich, rich economy, rich in the sense, देखते हो ना अब हम लोग हैप्पी न्यू ईयर का कार्ड भेजते हैं, किसी को विशेष करते हैं तो क्या कहते हैं, विश यू ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। तो प्रॉस्परस का मीनिंग होता है थ्राइविंग, सक्सेसफुल, फ्लरिशिंग, ग्रोइंग, बढ़ती हुई, है ना। तो ग्रोइंग इकोनॉमी थी, फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी, किस सेंस में? स्पेशली फाइनेंशियली, मनी मैटर से रिलेटेड हमारी इकोनॉमी एक फ्लरिशिंग इकोनॉमी थी, एक बढ़ती हुई इकोनॉमी। एंड देन इट वाज एन एग्रेरियन इकोनॉमी, ये तो अभी तक भी हम देखते ही हैं। तो एग्रेरियन इकोनॉमी का मीनिंग क्या था कि more than 85% of our population was directly as well as indirectly dependent upon agriculture. ठीक है, डायरेक्टली तो होता है, दोनों वर्ड्स आए हैं। अगेन लेट मी टेल यू, many terms will come
while doing all these chapters. So you are requested to go to the meaning, deep meanings of the terms, because later on it will be assumed that you know the meaning. Every time the same terms will not be explained later on. So directly का meaning तो हो गया कि the farmer, the cultivator who is doing cultivation in the farm, who is tilling the soil, he is a farmer or cultivator. तो वो तो हो गया directly dependent upon agriculture. Indirectly का मतलब होता है कि अगर direct cultivation is not being done by that person, some other things related to farming or agriculture are being performed by that person. Even then we can say कि that person is dependent on agriculture indirectly. जैसे for example हम कहें कि कोई पर्सन वीट खरीद के किसी फार्मर से आगे उसको सेल कर रहा है, तो अब उस पर्सन की भी इनकम का जो सोर्स है कि वीट उसने फार्मर से खरीदा, आगे वो सेल कर रहा है, तो वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड कर रहा है. चाहे वो डायरेक्टली टिलिंग नहीं कर रहा है, आप फार्म्स में काम नहीं कर रहे हैं, बट वो फार्मिंग के से रिलेटेड काम को ही आगे कर रहा है, सो इनडायरेक्टली. तो ऐसे सारे काम जो थे, चाहे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, हमारी जो मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन थी दैट वाज डिपेंडेंट अपॉन एग्रीकल्चर. ठीक है. उसके बाद है वेल नोन इकोनॉमी फॉर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. तो हैंडीक्राफ्ट क्या होते हैं? हैंडीक्राफ्ट मतलब कोई भी हाथों से बनाई जाने वाली चीज, कोई जैसे वी कैन से डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं which are made by hand. Those decorative items can be used for domestic purpose, घरों को डेकोरेट करने के लिए हो सकते हैं, या कोई भी आर्ट किसी तरह से उसको आर्टिस्टिक तरीके से बनाया गया हो, डोमेस्टिकली वी कैन यूज और अदरवाइज ऑल्सो सुंदर तरीके से ब्यूटीफुली एनीथिंग हैज बीन मेड विद हैंड्स दैट कम्स अंडर द टाइटल ऑफ दिस हैंडीक्राफ्ट्स. ठीक है. तो ऐसी इंडस्ट्री थी, हमारा जो कंट्री था, इट वाज वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक. तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले अवर कंट्री वाज लाइक दिस. एक अच्छा कंट्री था, एक रिच कंट्री था, कोई इतनी बुरी हालत नहीं थी. बट 200 years rule of the British that resulted in the stagnation of our economy, that resulted in the backwardness of our economy, that resulted in the poverty of our economy. So there was economic drain from India to England. ड्रेन का मतलब होता है पानी की पाइप होती है ना, पानी ऊपर से नीचे बहता है, उसको हम ड्रेन कह देते हैं, पानी की निकासी होती है. तो ऐसे ही जब किसी एक जगह से मनी वेंट टू इंग्लैंड फ्रॉम इंडिया, तो उसको हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स की टर्म्स में हम कहेंगे देयर वाज इकोनॉमिक ड्रेन. मतलब वेल्थ का ड्रेन हो गया, वेल्थ चली गई यहाँ से, इनकम चली गई, पैसा चला गया कहाँ से? फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड. और किसने किया ये सारा कुछ? एक्सप्लॉयटेटिव ब्रिटिश रूल में. ठीक है. तो अब है कि ब्रिटिश रूल को एक बीच में टर्म, वेरी इंटरेस्टिंग टर्म हैज बीन गिवन इन बिटवीन, कॉलोनियलिज्म, है ना. हम आमतौर पे बोल देते हैं इंडिया वाज ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो वी कैन थिंक अबाउट कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉलोनी. कॉलोनी का मतलब क्या होता है? कॉलोनी होता है हिंदी पंजाबी में भी से बस्ती, किसी के कंट्रोल में होना. अब इसका मीनिंग ये हो गया कि कोई भी पॉलिसी ऐसी हो, कोई प्रैक्टिस ऐसी हो जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर कंट्रोल करता है. और कंट्रोल कैसे करते हैं? फिजिकली नहीं कि सारा अपना कंट्री उठा के दूसरे कंट्री में चले गए, सारा इंग्लैंड नहीं यहाँ पे आ गया था, पूरी पॉपुलेशन नहीं आ गई थी इंग्लैंड की यहाँ पे. व्हाट हैपेंड? दे सेटल्ड देयर सम पीपल हियर इन इंडिया. अपने कुछ लोगों को किसी जगह सेटल कर देना, एंड थ्रू दोज पीपल टू कंट्रोल दैट इकोनॉमी. जैसे ब्रिटिशर्स ने क्या किया था पहले, इनिशियली दे सेंट देयर ऑफिशियल्स ऑफ वर्कर्स ऑफ देयर दिस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, वहाँ से अपने लोगों को भेजा यहाँ पे. फिर अपने पॉलिटिकल जो मास्टर्स थे उनके कहने पे कुछ और लोगों को, ऑफिशियल्स को भेज दिया यहाँ पे, और यहाँ पर सेटल हो गए, यहाँ पर रहने लगे. तो थ्रू दैट देयर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस या सेटलमेंट के करके दे कंट्रोल. तो जब कोई कंट्री ऐसे करता है उसको कह दिया जाता है कॉलोनी. अब इंग्लैंड दूर है, मतलब मास्टर्स आर वर देयर इन इंग्लैंड, बट इंडिया उनके कंट्रोल में आ गया थ्रू देयर सेटलर्स हियर. What did they start? They started interfering in all the matters, administratively, politically, economically, socially, every way they interfered. तो उस तरह से कंट्रोल कर लिया. ऐसे ही हम कह सकते हैं जैसे और भी एशियन कंट्रीज दे वर द कॉलोनीज ऑफ दिस ब्रिटेन. ऐसे ही अफ्रीकन कंट्रीज दे वर द कॉलोनीज ऑफ द यूरोपियन पावर्स. इंग्लैंड, फ्रांस, पोर्तुगल, स्पेन, ये सब कॉलोनियल पावर्स थे. और कॉलोनीज कहाँ पे बनाई इन्होंने? मोस्टली एशिया में और अफ्रीका में इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनाई. ठीक है. तो ऐसे ही इंडिया वाज ए कॉलोनी ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो उसके बाद है कि अब कैसे पता चला कि इकोनॉमिक ड्रेन हुआ? देयर शुड बी सम इंडिकेशन, कोई हिंट होना चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि प्रॉब्लम हुई है या कोई नुकसान हुआ है.
तो पहले तो किसी ने इसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, कोई स्पेशली एफर्ट्स वर नॉट मेड, स्पेसिफिक एफर्ट्स वर नॉट मेड एंड नोबडी केयर्ड मच। ठीक है चलो जैसे चलता है चलता है। बट लेटर ऑन व्हेन दिस सम एनलाइटनमेंट केम टू अवर पीपल, तो उन्होंने क्या किया, सम प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट्स वर देयर, एज यू कैन सी नेम्स इन द बुक आल्सो। वन ऑफ देम वाज दादा भाई नौरोजी। एक another name, very prominent economist, he was Dr. V.K.R.B. Rao। डॉक्टर V.K.R.B. राव उनका पूरा नाम है। देन एक और थे फिंडले शिराज, एक दो और नेम्स होंगे। तो ऐसे ये जो इकोनॉमिस्ट थे, दे स्टार्टेड रिसर्चिंग दिस इशू कि भी क्या हो रहा है, इंग्लिश पीपल व्हाई आर दे लिविंग इन इंडिया, व्हाई डू दे हैव सो मच इंटरेस्ट इन इंडिया, यहाँ पर क्यों इतना दखल दे रहे हैं, क्यों इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो दे स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स एंड व्हेन दे स्टार्टेड देयर रिसर्च, तो उसमें दादा भाई नौरोजी, डॉक्टर V.K.R.B. राव, फिंडले शिराज और कौन से विलियम डिगबाई और भी कई सारे थे, ये मेन है। तो दे स्टार्टेड मेकिंग देयर रिसर्च। तो उसमें उन्होंने देखा कि यहाँ पर इंडिया की जो विद इन दोज ब्रिटिश रूल ईयर्स, यहाँ की जो नेशनल इनकम है और पर कैपिटा इनकम है, दैट वाज डिक्लाइनिंग डे बाय डे। ठीक, अब आई हैव यूज्ड टू टर्म्स, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। अपनी रिसर्च से दे गॉट दीज फैक्ट्स कि भाई लगातार ब्रिटिश रूल के अंदर रहते रहते हमारी नेशनल इनकम कम हो रही थी इंडिया की और पर कैपिटा इनकम कम हो रही थी। अब आप में से कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये दो टर्म्स क्यों यूज की हैं। तो आई होप इन 10th क्लास जिनको याद है, इकोनॉमिक्स में फर्स्ट ही चैप्टर था, उसमें आपने किया था कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो क्या होता है नेशनल इनकम, जैसे अभी राइट नाउ 49 participants are there including 2 teachers and student, 49 people हैं। चलो राउंड फिगर में गए 50 मान लो। अब हम सब की मान लो किसी की इनकम है 10 रुपीज, किसी की इनकम है 5 रुपीज, किसी की है 50 रुपीज, किसी की 40, किसी की 200, सबकी अपनी अपनी इनकम। इफ वी एड ऑल दीज इनकम्स ऑफ 50 पीपल, ठीक है, जिसकी जो भी है वट एवर, किसी की कम ज्यादा, वट एवर अमाउंट कैन बी देयर, एनी अमाउंट कैन बी देयर। सो इफ वी एड ऑल दीज इंडिविजुअल इनकम्स, तो हम कहेंगे, मान लो अमाउंट होता है टोटल, मान लीजिए 1000, तो हम कहेंगे कि जी 1000 रुपीज इज द नेशनल इनकम ऑफ अवर 12th क्लास, है ना। 12th क्लास को कंट्री मान ले, इंडिया मान ले, तो हम कह रहे हैं कि इंडिया में 50 पीपल आर देयर एंड द नेशनल इनकम ऑफ दीज 50 पीपल, दैट इज नेशनल इनकम ऑफ 12th क्लास या इंडिया, दैट इज इक्वल टू 1000 रुपीज। ठीक, अच्छा, अब इसमें से हमें ये तो नहीं पता चल रहा है, ओवरऑल फिगर वी हैव गॉट सारे देश की इनकम, है ना, पूरे कंट्री की इनकम। तो इससे क्या होता है, हम ये नहीं कंपेयर कर सकते कि इंडिया को हम अमेरिका से कंपेयर कर लें, इंडिया को इंग्लैंड से कंपेयर कर लें, इंडिया को किसी और कंट्री से कंपेयर कर लें। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि किसी कंट्री में हो सकता है ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी कंट्री में कम पॉपुलेशन है, थोड़ी पॉपुलेशन है, तो हम उनको कैसे कंपेयर करें। जैसे मान लो इंडिया और श्रीलंका, तो अब इंडिया और श्रीलंका देखो साइज में कितना फर्क है, पॉपुलेशन का कितना डिफरेंस है, तो हाउ कैन वी कंपेयर भी इंडिया की कम है कि ज्यादा है या श्रीलंका की कम के ज्यादा है, नहीं हो सकता कंपैरिजन। ठीक है, ओवरऑल राउंड फिगर वी गेट कि भी 1000 इनकम है पूरे सब लोगों की इनकम मिला के, but that does not give us a clear cut picture of development of any country. So for in order to overcome that problem, we need to understand the meaning of the term per capita income. Okay, अब पर कैपिटा इनकम कितनी होगी, मान लो मैंने बोला 1000 रुपीज होगी हम सबकी इनकम, तो पर कैपिटा इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। ये आपने किया हुआ है 10th में, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन। तो नेशनल इनकम है एज पर अवर एग्जांपल 1000, पॉपुलेशन है हमारी क्लास की कंट्री की 50, तो कितना हो गया, 50 से डिवाइड कर दें, कितना हो गया 20 हुआ ना, डिवाइड कर दें 1000 को 1000 को डिवाइड कर दें 50 से, तो वी गेट 20। तो हम ये कह सकते हैं कि भी पर कैपिटा इनकम पर पर्सन एवरेज इनकम इज इक्वल टू 20 रुपीज। ठीक, वो एक अलग इशू है कि सबकी 20 नहीं है, किसी की 20 से ज्यादा है, किसी की 20 से कम है, दैट्स फाइन। बट एक कहने के लिए रफली एक एवरेज फिगर वी गेट दैट इज इक्वल टू 20, तो वी कैन से कि इंडिया के लोगों की पर कैपिटा इनकम 20 रुपीज। तो उससे फिर हमें पता चल जाता है कि किस कंट्री के लोगों की पर कैपिटा इनकम ज्यादा है, तो वो एक एडवांस्ड कंट्री होता है, जिसके लोगों की पर कैपिटा इनकम इज लेस, दैट कंट्री इज ए लेस डेवलप्ड कंट्री, तो उससे हम कंपेयर कर सकते हैं। तो एनी हाउ कमिंग टू द मेन थिंग, so during the British rule, when all these economists they started making their research, so then they analyzed these facts and figures related to national income and per capita income.
तो विद द हेल्प ऑफ दीज फिगर्स दे केम टू नो कि भी जो इंडिया है इकोनॉमिक ड्रेन इज टेकिंग प्लेस, वेल्थ फ्रॉम इंडिया इज गोइंग टू इंग्लैंड थ्रू देयर एक्सप्लॉयटेटिव मेजर्स। तो इसके ऊपर उन्होंने स्टडी किया, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पर है, यहाँ पे यू विल गेट ए क्वेश्चन कि टेल द नेम ऑफ द इकोनॉमिस्ट, प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट, तो यू हैव टू लर्न द नेम्स ऑफ दीज इकोनॉमिस्ट। अच्छा, नाउ दिस वाज जस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर। नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू कवर 5-6 things which are we have to study about these. Firstly, we have to study about agriculture, state of agriculture. Then we have to study about the state of industry during British rule. Then state of foreign trade. Then demographic conditions, and then occupational structure, and last is infrastructure. Means 5 or 6 points are there which are to be studied. कि इनकी क्या position थी, what was the status of these parameters. Parameter होता है जिन चीजों के particular items जिसकी हमने study करनी होती है, तो उसको हम parameter कहते हैं, ठीक। तो first है agriculture। तो agriculture का क्या status था, जो भी स्टेटस था उसके उस स्टेटस होने के पीछे व्हाट वर द रीजंस, अब हमने ये पढ़ना है, ठीक। तो अब एग्रीकल्चर आपको पता ही है, पहले भी आपने किया हुआ है। इकोनॉमी में ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्यूपेशन 3 सेक्टर्स होते हैं, वन इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर, वन इज सेकेंडरी सेक्टर, वन इज टर्शियरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर आ जाता है हमारा, मेनली उसमें आ जाता है विच एक्टिविटी, एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी काम है वो सब आ जाते हैं अंडर द हेड ऑफ प्राइमरी सेक्टर या एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एज आई टोल्ड इन द बिगनिंग, क्या था हमारा एग्रीकल्चर का पोजीशन, क्या थी, इट वाज हेवीली पॉपुलेटेड सेक्टर। हेवीली पॉपुलेटेड सेक्टर का मतलब कि मेनी पीपल वर देयर, more than 80-85% people they were depending upon agriculture. Means maximum labor force of our country that was employed in, that was absorbed by this agriculture sector. ज्यादा लोग इसी कामों में लगे हुए थे, प्राइमरी कामों में लगे हुए थे, फार्मिंग के काम, ठीक है। तो अब उसमें क्या हुआ कि अब फार्मिंग तो ठीक है, सोचा जाए इफ वी थिंक केयरफुली, तो इफ मोर पीपल आर engaged in some activity in some sector, so that sector should be a very well developed sector. सारे लोग एक किसी काम में लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली वो सेक्टर डेवलप्ड होना चाहिए, बट दिस वाज नॉट द केस। एग्रीकल्चर वाज गिविंग वर्क टू मेनी पीपल, but its state was not very fine. It was a very backward agriculture, very poor agriculture and neglected agriculture. कि उसकी तरफ neglected होता है जिसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता है, मतलब attention was not being paid. वर्क तो हम ले रहे हैं, काम तो लेते हैं, जैसे आप मान लो कार में आते हो, स्कूटर पे आते हो स्कूल में, आप रोज उससे आ तो रहे हो, बट आप उसका ध्यान नहीं रख रहे, उसको साफ नहीं कर रहे, उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है उसको ठीक नहीं करवा रहे, यू आर एक्सप्लॉइटिंग दैट व्हीकल बट यू आर नॉट टेकिंग केयर ऑफ दैट। तो सेम थिंग वाज देयर कि एग्रीकल्चर पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल वर डिपेंडिंग, बट द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वर लाइक दैट कि भाई मच अटेंशन वाज नॉट पेड टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द एग्रीकल्चरल सेक्टर। उसको कैसे बेटर किया जाए, कैसे ठीक किया जाए, एक हेल्दी स्टेट में रखा जाए, एफर्ट्स वर नॉट डन। तो अब इसके रीजंस क्या थे, व्हाई वाज दिस सिचुएशन, तो आई एम गोइंग टू टैकल दोस पॉइंट्स वन बाय वन, वेरी इजी। first point of this backwardness of Indian agriculture was this land settlement system. Headings are given in the book, so I am going to explain those. Land settlement system, ठीक है। तो अगर आपको याद हो, in 8th class you would have read about 3 types of land revenue systems were adopted by the Britishers, which were those: permanent settlement system, which is popularly known as zamindari system, ठीक है। Permanent settlement system, or the same is also known as zamindari system. Second was mehelwari system. Third was रियॉटवाड़ी system. कई जगह इसको रैयतवाड़ी भी बोल देते हैं, रियॉटवाड़ी भी बोल देते हैं, रैयतवाड़ी भी बोल देते हैं, ठीक है। तो 3 मेजर सिस्टम्स उन्होंने अडॉप्ट किए, उसमें से भी जो स्पेशल मेन एम्फेसिस वाज गिवन ऑन दिस फर्स्ट वन, दैट वाज जमींदारी सिस्टम। तो अब जमींदारी सिस्टम में क्या था, हाउ एक्सप्लॉयटेशन वाज टेकिंग प्लेस। तो इसमें क्या होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, दे अपॉइंटेड सम पीपल, बिग लैंडलॉर्ड्स, एज जमींदार्स। जैसे हम क्लास में टीचर आके गए कि ये 4 बच्चों को मैं मॉनिटर बना देता हूँ अपनी मर्जी से, ठीक है, कोई इलेक्शन नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं, अपनी मर्जी से बना दिया, नॉमिनेट कर दिया। तो सिमिलरली दोज पीपल हु वर इन फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स, उनकी हाँ में हाँ मिलाते थे, या उनको फेवर करते थे, या उनको प्लीज करते थे बाय देयर वर्क्स और एक्टिविटीज, तो
खुश होकर उनको जमींदार बना देते थे। नाउ अब उन जमींदार की ड्यूटी क्या होती थी? द ब्रिटिश गवर्नमेंट दे फिक्स्ड सम पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी which was to be paid in the British office by the जमींदार्स, जो जिसको बोला जाता था रेंट। फार्मर से मनी कलेक्ट करके उस रेंट को, उस लगान, आम बोलचाल में दिस इज कॉल्ड लगान, तो उस लगान और रेंट को कलेक्ट किसने करना था? जमींदारों ने। फ्रॉम होम? फ्रॉम फार्मर्स, पीजेंट्स, उनसे कलेक्ट करके एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी वाज टू बी डिपॉजिटेड इन द ब्रिटिश ऑफिस, ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑफिस में, दैट वाज टू बी डिपॉजिटेड। अब वो ड्यूटी लगा दी उन जमींदारों की, और उन जमींदारों को बोला कि आपने मुझे, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट को इतने पैसे देने हैं, उससे ज्यादा इफ यू कलेक्ट, वो आपका पैसा है। जैसे मैं कहूँ, मुझे हिमांशु दिख रहा है, तो हिमांशु की को मैं जमींदार बना दूँ अपनी क्लास का, उसको मैं कहूँ कि आपने हर एक से आप जितने मर्जी पैसे ले लो, पर मुझे आपने 100 रुपीज डिपॉजिट करवाने। तो रेंट हो गया 100 रुपीज। अब हिमांशु दूसरों को डरा के, उनको धमका के, मारपीट करके, जैसे मर्जी करके मान लो कलेक्ट कर लेता है 300 रुपीज, तो बाकी के 200 इसके अपने हो गए, ये उस पर इंजॉय करे, जो मर्जी करे, और मुझे इसने डिपॉजिट करवानी है ओनली 100 रुपीज। तो जमींदारी सिस्टम का ये था कि जो जमींदार थे बिग लैंडलॉर्ड से, दे वर गिवन वेरी फ्रीडम बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट, भी जैसे मर्जी करो, हमें इतना रेंट कलेक्ट करके आप दे दो, बाकी आपका आपका फायदा। तो उनको भी लगता था कि हम एक्सप्लॉइट करें, मारपीट करके भी लोगों से ले लेते थे। एंड इफ सम पीपल, सम फार्मर्स और पीजेंट्स वर नॉट एबल टू पे, तो देन दे वर एविक्टेड फ्रॉम देयर लैंड। एविक्टेड होता है, उनको उनकी जमीन से बेदखल कर देते थे, उनको हटा के वो जो लैंड होती थी किसी और को टिलिंग करने के लिए, टिलिंग मतलब फार्मिंग का काम, खेती बाड़ी का काम करने के लिए किसी और को दे देते थे कि तुम काम करो यहाँ पे, उसको हटा दिया जो उनको पैसे नहीं देता था। तो इस तरह से ये बड़ा एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम था। तो उसके करके जो आम लोग थे, आम फार्मर्स थे, उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। ठीक है, जस्ट ए मिनट। हाँ जी, तो इस तरह के सिस्टम के करके हमारी कंडीशन, जो आम फार्मर्स थे, देयर कंडीशन वाज डिटीरियोरेटिंग डे बाय डे। ठीक, उसके बाद था सेकंड, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। तो ये भी आपको पता ही है, कमर्शियलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? Commercialization means when the crops are grown not for the subsistence purpose but for the market purpose. दो टर्म्स आपको याद होंगे, एक होता है सबसिस्टेंस। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब होता है अपने घर की जरूरतों के लिए। फार्मर है, देयर फैमिली इज देयर, फैमिली मेंबर्स आर देयर, इफ दे डू द वर्क ऑफ दिस फार्मिंग ओनली टू मीट देयर फूड ग्रेन रिक्वायरमेंट्स। तो जितनी फसल होगी घर पे ही रख लेनी है, सारा साल खाना पीना है, अपने घर के लिए ही रख लेना है, अपने गुजारे के लिए, दैट इज कॉल्ड सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो ब्रिटिशर्स के आने से पहले अवर्स वाज दिस टाइप ऑफ सिस्टम कि फार्मर्स आमतौर पर अपनी जरूरतों के लिए ही फार्मिंग करते थे। But after the coming of the Britishers, lot of change took place. Now they insisted Indian farmers to start commercialized farming. कि भी आप कोई चीज अगर ग्रो करते हो तो वो बाजार के लिए ग्रो करो, मार्केट के लिए ग्रो करो, सिर्फ घर पे रखने के लिए नहीं आपने कल्टीवेशन करनी। अब उसका रीजन क्या था? रीजन ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे, अगर आपने थोड़ा सा ध्यान से हिस्टोरिकली इफ यू रिमेम्बर, तो ब्रिटेन में भी 17th सेंचुरी के आसपास वहाँ पे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मतलब मैकेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मशीनें आ गई, वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आ गई, पावर आ गई, स्टीम इंजन आ गए, तो इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। तो अब जो इंडस्ट्रीज थी वो भी, उनको ज़्यादातर जो थी वो देवर एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। तो अब उनको रॉ मटेरियल चाहिए था इंडस्ट्री को चलाने के लिए। तो रॉ मटेरियल कहाँ से आता है? अब आपने देखा होगा, इंग्लैंड एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, क्लाइमेटिकली, जोग्राफिकली उनकी जो लैंड है दैट इज़ नॉट वेरी सूटेबल फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, वहाँ पे इतना काम नहीं हो सकता है। तो अब उतने छोटे से कंट्री में मशीन ज़्यादा हो गई, इंडस्ट्रीज वेल डेवलप्ड हो गई, तो अब उनको चाहिए था रॉ मटेरियल। तो फ्रॉम वेयर दे वर कलेक्टिंग देयर, दे वर गेटिंग देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर कॉलोनीज, एंड इंडिया वाज ए वेरी फर्टाइल इकोनॉमी फॉर देम, फर्टाइल कॉलोनी फॉर देम। तो यहाँ तो लैंड भी बड़ी फर्टाइल थी, सब कुछ, एग्रीकल्चर तो वैसे ही बहुत अच्छा था। अब आके उन्होंने क्या कर दिया कि कमर्शियल की अपना क्रॉप ग्रो करो एंड सेल इट इन द मार्केट टू द ब्रिटिशर्स, आप ही खरीद लेते थे। एंड दे प्रमोटेड कैश क्रॉप्स। कैश क्रॉप्स का मतलब होता है वो क्रॉप्स जिनसे हमें ज्यादा पैसे मिल सकते हैं, बाजार में बेच के कंपैरेटिवली ज्यादा पैसे मिल सकते हैं। मतलब आमतौर पे वो घर की कंजम्पशन के लिए नहीं रखा जाता, दैट इज मेंट फॉर द मार्केट। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉफी है, कोकोआ है, चॉकलेट पाउडर जिससे बनता है ना, वो कोकोआ है, या कोई फ्रूट्स हैं,
या टी है, ऐसी चीजें। अब कितना का घर पे कोई रख लेगा, थोड़ा बहुत रख के, तो बाकी तो ये मेनली मार्केट के लिए ही होता है। तो ऐसी क्रॉप्स जिनसे ज्यादा पैसे मिलते हैं उनको कहा जाता है कैश क्रॉप्स, ठीक है। अदरवाइज जो सीरियल क्रॉप्स हैं, व्हीट, राइस, ये भी एक तरह से कैश क्रॉप्स है। आजकल तो उनको भी बेचा जाता है एट ए वेरी लार्ज स्केल, बट स्टिल इनके कंपेरेटिवली दूसरी क्रॉप्स के जो मनी होता है, प्राइस होता है, वो ज्यादा होता है। तो ब्रिटिशर्स ने ये सारा सिस्टम शुरू कर दिया और अपने लोगों को कहा, जो ब्रिटिशर प्लांटेशन ओनर्स होते थे, कि फार्मर्स को पैसे दे दो एडवांस में, उनको बोलो कि आप ये क्रॉप ग्रो करो। अगर आपको याद हो, एक इंडिगो, ब्लू ब्लू रिबेलियन याद होगा आपको, तो वो ऐसे पहले ही पैसे एडवांस में देके फार्मर्स को कंपेल करते थे कि आप कॉटन ग्रो करो, आप शुगर केन ग्रो करो, आप इंडिगो ग्रो करो, और उन्हीं चीजों को खरीद लेते थे। तो जबरदस्ती से ये सारा कुछ किया गया। तो रिजल्ट क्या हुआ उस चीज का, कि जो हमारी एग्रीकल्चर, फर्स्टली इट वाज वेरी फ्लरिशिंग इन फूड ग्रेन्स, नाउ देयर वाज शॉर्टेज ऑफ दोज फूड ग्रेन्स। अब जो किसी चीज को ग्रो ही नहीं करेंगे या कम करेंगे, लोग उतने ही हैं, पॉपुलेशन तो उस समय भी थी, तो लोगों को खाने पीने की जो क्रॉप्स थी उनकी शॉर्टेज होने लगी, स्केर्सिटी होने लगी, और जिन क्रॉप्स को मार्केट में बेचना होता था उनकी ओवर सप्लाई होने लगी। और फायदा कौन उठा रहा था उस ओवर सप्लाई का? ब्रिटिशर्स। वो खरीद रहे थे। Why were they buying all these cash crops? Because they needed those raw materials in their industries in their country, that was England. वहां पर उनको काम में लगाने के लिए वो सब कुछ चाहिए था। तो हमारा जो एग्रीकल्चर का सीन था, दैट चेंज फ्रॉम सब्सिस्टेंस फार्मिंग टू कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग, ठीक है। उसके बाद है, नेक्स्ट है वेरी सिंपल, लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी का मीनिंग होता है, एक आपने वर्ड सुना होगा लास्ट ईयर भी, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्शन वर्ड सुना, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि जस्ट फॉर एग्जांपल, कि मैंने दिन में 10 आवर्स काम कर लिया, और मान लो मैं पेंसिल्स बना रही हूँ, मान लो कुछ भी एग्जांपल सोच लो, पेंसिल्स बना रही हूँ, तो मैंने 10 आवर्स काम करके मैंने 500 पेंसिल्स बना ली, ठीक है। तो व्हाट इज माय प्रोडक्टिविटी? 500 डिवाइडेड बाय 10, तो क्या बोलेंगे? 50। एक घंटे में 50 पेंसिलें बनाई, यही मतलब निकला इस बात का। आई रिपीट, 10 आवर्स मैंने काम किया, 10 घंटे काम करके आई मैन्युफैक्चर्ड, आई मेड 500 पेंसिल्स। नाउ आई वांट टू नो माय प्रोडक्टिविटी, तो माय प्रोडक्टिविटी विल बी 500 डिवाइडेड बाय 10 आवर्स, 50 पेंसिल्स। तो मैं कहूँगी कि मेरे एक घंटे की प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू 10 पेंसिल्स है। मैंने 10 पेंसिल्स बना ली, ठीक। अच्छा, तो ऐसे ही जब हमने लैंड की प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट करनी है, तो किसी ना किसी टर्म के रिलेटिवली उसको काउंट किया जा सकता है। ये नहीं कहेंगे कि इस लैंड से 10 kg प्रोडक्शन हुई, 10 क्विंटल प्रोडक्शन हुई, तो पहले ये तो बताना पड़ेगा कि वो लैंड का साइज कितना था। 1 हेक्टेयर लैंड थी या 2 हेक्टेयर लैंड थी, या 2 एकड़ थी, 5 एकड़, 10 एकड़, कोई ना कोई यूनिट ऑफ मेजरमेंट भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो जो प्रोडक्टिविटी है, इसका मतलब यील्ड पर यूनिट ऑफ लैंड। अब वो यूनिट ऑफ लैंड कोई भी हो सकता है, हेक्टेयर, एकड़, बीघा, मरला, कुछ भी। मरले तो चलो घरों के लिए होते हैं ना, वैसे बताने के लिए कह रही हूँ। तो कोई भी एक यूनिट ऑफ लैंड के से कितनी प्रोडक्शन मिलती है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। तो ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, अब वो प्रोडक्टिविटी वाज गोइंग डाउन एंड डाउन। क्यों कम जा रहा था? क्योंकि जो जमींदार होते थे वो कोई ध्यान नहीं करते थे फार्मर्स का, उनको कोई रिलैक्सेशन नहीं देते थे, सारे पैसे उनसे ले लेते थे मैक्सिमम, और लैंड को इम्प्रूव करने के लिए कोई ज्यादा उनकी तरफ से नो एफर्ट वाज मेड, ठीक है। और कोई नई टेक्नोलॉजी, कोई मशीन्स को यूज करना, ऐसा कुछ भी, कोई किसी तरह की प्रमोशन नहीं थी। काम करने के तरीके पुराने ही थे, प्रिमिटिव थे, बट उससे लैंड से काम ज्यादा लिया जा रहा था, इम्प्रूवमेंट के लिए कोई एफर्ट नहीं किया जा रहा था, तो उसके करके देयर वाज लो प्रोडक्टिविटी। एंड लास्ट है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। तो अब आपको पता ही है पार्टीशन क्या था। पार्टीशन क्या हुआ था हमारा? पाकिस्तान बन गया था। वन वाज ईस्ट पाकिस्तान एंड वन वाज वेस्ट पाकिस्तान। जो अभी वाला पाकिस्तान है, वेस्ट पाकिस्तान। तो जो ईस्ट पाकिस्तान था, वहां पे है प्रेजेंट वाला बांग्लादेश। तो वो सारा जो एरिया था, दैट इज वेरी फर्टाइल फॉर द कल्टीवेशन ऑफ जूट। कॉटन जूट होता है ना, फाइबर क्रॉप्स होती है। तो वो सारे जो जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज थे, दे वेंट टू ईस्ट पाकिस्तान, फर्स्ट वाइल ईस्ट पाकिस्तान। तो उसका भी हमारी जूट इंडस्ट्री के ऊपर बड़ा एडवर्स इफेक्ट हुआ, ठीक है। सो दीज वर द रीजंस ऑफ आवर this backward status of our agriculture, which was due to the interference of the Britishers. Okay? So time is also going to be over, so I just want to conclude here only. Okay, thank you. If you have any problem, please watch the video again, link will be shared.
still you face any problem, any word is not clear, you can send me text message also, right? Thank you all. So let me stop my recording also.